हाय मेरे प्यारे बच्चे, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। पहले मैं आपके लिए एक कविता आलापन करने को चाहता हूँ। आप सुनिए। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. बच्चे, आप कैसे लगे? ठीक है, एक कविता है। एक कविता में किसके बारे में कहते हैं? ठीक है, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आने पर भी हम इस पर हताशा सोचकर न बैठना चाहिए, पर उसे सुधार करके हम बहुत जोश से हमारे जीवन में आगे बढ़ना है और विजय प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, सो whatever it may be happens in our life, any problems or any difficulties, we never be disappointed there. Instead, there will be the solution. We have to find the solution and move ahead and gain the success in our life. Okay? Related this topic, such a way we are moving ahead through our poems. आगे चलेंगे हम तीसरी पद्य की ओर. Now we are going to deal the third stanza. पहले आपके लिए मैं ये वाचन करूंगा या आलापन करूंगा। उस समय आप बहुत ध्यानपूर्वक से सुनना है। ये सुनने के पश्चात या सुनने के समय ही आप इनमें आने वाली कठिन पद को समझना चाहिए और उसे रेखांकित करना भी चाहिए और बाद में इसका अर्थ को ढूंढना भी जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट दिस पोएम और रीड दिस स्टैंजा, द थर्ड स्टैंजा, एंड you have to identify the difficult words and later you have to find the meaning or the similar words of it. तो ठीक है। कहीं खो गया है अपनापन, सबके होंठों पर सूनापन, चुप्पी साधे हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। ठीक है, वहां तक हम देखेंगे। पहले कठिन पद की ओर। खो गया इसका समान पद है was lost, it is passive. अपनापन इंटीमेसी या अफेक्शन। तीसरा है होंड लिप्स। सूनापन अनहैप्पी दुखमय। चुप्पी साइलेंस, निशब्द, कोई आवाज नहीं है। ठीक है, साथे generally, usually। डाल ब्रांच, कोई पेड़ के ब्रांच होते हैं। ठीक है, डाल। चहकेम चीट, द birds chirping voice of birds। ठीक है, वहां तक हम चर्चा करेंगे या आशय समझ जाते हैं। कहीं खो गया है अपनापन, कहीं somewhere खो गया was lost, it was lost somewhere. What it lost? अपनापन, affinity, the affection. We lost the real affection in this world. कवि ने
हमसे कहता है कि हमारे दुनिया का अफेक्शन या प्रेम या अपनापन बहुत कमी हो गई है, पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं देख सकता है, ऐसा कहता है हमारा कवि। ठीक है, सबके होंठों पर सूनापन। बाद में कवि कहता है ये दुनिया के हर व्यक्ति के चेहरे पर कोई आशा नहीं है, पर भी निराशा है, यह बहुत दुखी पड़ती है। हर एक व्यक्ति के होंठ पर, होंठ क्या है? लिप या लिप्स। हर एक व्यक्ति के होंठ पर हताशा, निराशा, असहायता या दुख होता है। किसके होंठ पर भी कोई ना कोई खुश नहीं है, ऐसा कहता है कवि। The poet tells us that he couldn't find any kinds of happiness on any lips or on any faces in this world. And later, chuppi saate har ghar aangan. Later he went through the old courtyards of the houses. साधारणतया हर एक घर में आपके जैसे बच्चे लोग, आपके जैसे छात्र लोग कोई न कोई आवाज उड़ती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर यहाँ कवि कहते हैं कि हर एक घर के आंगन एकदम निशब्द है या आवाज नहीं उड़ रहे। क्यों ऐसे लगते हैं? The poet tells us that no sounds comes from any courtyard of the house. You like students, you like children will make a lot of noises at your home, am I right? So, but here the poet tells us that no sound at all. Something happened here. It is not the problem of a home or some of the houses. It's a problem of the universe. Now listen, Bulbul, Koyal, Maina, Bankar. So all are unhappy. So that's why the poet tells us or advises us that we have to make happiness, we have to feel the happiness in each and every heart. It's our duty. So that's why we have to act as the sweetest voices birds like Bulbul, Maina and Cuckoo, like that. Bulbul, Bulbul, bird. Koyal, Koyal, cuckoo. Next, Maina, Maina, another bird. Bankar, being. We have to become such kinds of beautiful sounds birds. And Dal, Dal, Chehike. Dal, Dal kya hai? Branch. We have to move. How the birds move from one branch to another branch with happily and creates its chirping voices or the beautiful voices. I'm right. By hearing such voices, we feel very happy and our mind will feel definitely more satisfied or more happiness, no doubt. The same way, see, listen, बुलबुल कोयल मैना बनकर हम, कवि हमसे कहता है कि हम भेड़ के जैसे बनना है। किसी तरह भेड़ के जैसे, किसी तरह पक्षी के जैसे, बुलबुल के जैसे, मैना के जैसे या कोयल के जैसे बनकर हर एक शाखा से शाखा तक या पेड़ के हर शाखा से कूदकर हम क्या करना चाहिए? So everyone's heart we have to feel the happiness by showing or by listening or by hearing the beautiful melodious voice. Clear? It's our duty to make happy to everyone in the world. If you find anyone who sits in sadness, there you have to realize that it's your duty to make that person happy. Clear? How the birds are
making happiness to the entire world. The same way, we have to be acted as like these birds and make happiness or fill happiness in the minds of millions and millions of the people of here. Got it? तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इस पद्य के आशय को बहुत समझ में आते थे, इसलिए मैं आपके लेकर जाता हूं चौथी पद्य की ओर। तो पहले मैं आपके लिए ये वाचन करूंगा या आलापन करूंगा, उस समय आप इनमें आते कठिन पद को समझना या अर्थ को ढूंढना चाहिए। तो ठीक है। नयन किसी के रहे नगीले, हंसते हंसते जीवन जी ले, अमृत विष मिलजुल कर पी ले, हर मुश्किल से तब कर निकले, कुंदन बन दमके। तो इनमें आते कठिन पद क्या क्या है? पहला है नयन। नयन का समान पद है आई। गीले, गीले, वेट, सॉक, सॉक, SOCK, सॉक, वेट। नेक्स्ट जी, जी, जी का एहाम, जी का समान पद है लिव, रिसाइड, वी हैव टू लिव। जी, जी को दूसरा अर्थ है, इसका अर्थ है उर या हृदय। पहले ही आपने पढ़ा है, उर का अर्थ हृदय है, जी भी अर्थ है हृदय। ठीक है। अमृत, अमृत इलिक्सर, इलिक्सर, हनी ड्यू। विष, विष पॉइजन। तबकर बर्निंग, तबकर बर्निंग। कुंदन, कुंदन गोल्ड, कुंदन का समान पद है गोल्ड अंग्रेजी में। दमकेम, दमकेम टू शाइन, टू ग्लो। तो ठीक है, मैम आपके लिए इसका भावार्थ समझ चाहते हैं, तो ठीक है, ये हम ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए भावार्थ स्पष्ट करूंगा। नयन किसी के रहे न गीले, हंसते हंसते जीवन जी ले। We don't allow to anyone to wet their eyes with tears. Instead, you have to live with happiness. हंसते हंसते जी ले। हम कैसे जीवित रहना चाहिए? हंसते हंसते, हंसकर हंसकर हम अपना जीवन बिताना चाहिए। We have to live happily. ठहाके करके, ठहाके मार के हम बहुत जोश से, बहुत आशा से, बहुत खुशी से हम अपना जीवन आगे बढ़ना चाहिए। It's not the life to cry for a long time until the death. Instead, here we have to realize that each and every moment of our life is important. So we have to live happily and spread the happiness to others. Got it? अमृत विष मिलजुल कर पी लें। In this life, we do not expect only the great things or the good things. The bad things also will be affected us. अमृत विष मिलजुल कर, इसका अर्थ है हम हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां आते हैं या कोई खुशी भी आते हैं। इस दोनों को हम सामना करना या स्वीकृत करना चाहिए। Whatever it may be the difficulties or troubles, as well as the good things, the prosperities, what it may be happens in our life, comes in our life, we have to receive it happily. That's all. No doubt. We needn't reject anything. Because it's a part of our life. जीवन सुख दुख सम्मिश्र है। जीवन की प्रत्येकता क्या है? जीवन सुख दुख सम्मिश्र है। दुख आने पर बहुत ही दुख होने की अवसर नहीं होने चाहिए, या हर्ष होने पर अत्यधिक आनंद होने की आवश्यकता भी नहीं है। समान रूप से हम इन्हें स्वीकृत करना चाहिए। यही है सच्ची मनुष्य
की प्रवृत्ति। ठीक है, सच्ची मनुष्य ऐसे करता है। ठीक है, अमृत विष मिलजुल कर पी लेम, पी drink. We have here means receive. We have to receive both the good things and bad things what may be happens or affects in our life. हर मुश्किल से तब कर निकलेम. We have to overcome. निकलेम here overcome. We have to overcome from each and every difficulties. मुश्किल difficult. हर कठिनाई से हम निकल कर आगे बढ़ना चाहिए। कैसे? कुंदन बन दमके। कुंदन का समान पद है गोल्ड। कनक के जैसे कैसे होते हैं गोल्ड? सो इट विल बर्न इन द फायर एंड विल बिकम द प्योर गोल्ड। The same way, whatever it may be, any difficulties that we are facing in our life, we have to overcome with very positive attitude or in optimistic way. And we have to shine. We have to shine like a gold. Kundan jaise damke hum. We have to glow like a gold, a pure gold. Got it? So, जीवित में हर एक पल में या निमिष में आशा से भरना चाहिए। आशा से हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही है इसका भावार्थ। तो ठीक है, मैं सोचता हूं आपको ये दोनों पंक्तियों का भावार्थ अच्छी तरह समझते हैं। देखिए एक वीडियो। It was working. I'm not asking you to come home every day. You're always like this. Oh. Not the only one that has to put up with things. Just your work just for today. I need to give this gift.
Wow. Yay! यहाँ ये बच्चे का प्रेरण श्रोता अपने माता पिता है. So today's activity, one assignment for you. You have to write an assignment on the inspired person in your life. ठीक है, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है. तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा पे. धन्यवाद.